In the meanwhile, to more breaking news that's coming in on the hit and run case in Lucknow. The car, remember in this case, first hit a motorcycle parked on the roadside and then ran over several people. Also crashed into an e-rickshaw, an empty auto rickshaw, and nearly half a dozen people, including 2 women and 2 children, were injured in the accident. A critically injured child unfortunately succumbed to injuries during treatment. This is a CCTV footage that you see on your screens of the entire accident took place. Look at the manner in which that car takes over the cars to its right and then rams into a motorcycle first. So we've zoomed in on those visuals of the car in question. This is the car that crosses 2 cars at least that were on to its right, and then as soon as it crossed over, overtook those cars, it rammed into a motorcycle which was parked not in the middle of the road or was moving on the road, but we see this happening to a 2-wheeler which was parked on the roadside, and then following this ran into several other people. So it ran over other people, almost half a dozen people impacted. Unfortunately, a young child succumbed to his injuries during undergoing treatment as well. This is a visual that we're picking up from the Lucknow hit and run case. And remember, this comes close on the heels of the Kanpur Lamborghini crash investigation. Remember, lots being spoken of on a possible cover-up and how the accused in that case was being given a shield because of his father, who is a tobacco businessman. But shifting our focus now to these visuals coming in from Lucknow, days into that Lamborghini car crash in Kanpur, we look at this one hit and run case, another hit and run case that's been reported in Lucknow, and the CCTV visual of the same. On the left side of your screens, you see that car, and it appears that the car is at a high speed because it overtakes all the vehicles to its right. Clearly, you see those 2 vehicles. The moment it overtakes these 2 vehicles, a little ahead of that overtake period, we do see it ramming into this 2-wheeler which was on the right side, a little ahead of these 2 cars that it overtook. I do want to go across to Amit Singh, who joins us with more details. Amit, और क्या जानकारी दे सकते हैं? ये CCTV footage बहुत साफ तौर पे दिखा रहा है कि वो 2-wheeler, वो जो बाइकर है, वो आराम से अपनी स्पीड पे अपनी लेन में गाड़ी चला रहा था, and this car just overtook these 2 cars to its right and at a high speed as well apparently. What do you make of this and what have investigators revealed so far? और जानकारी दीजिए। देखिए, कार जो था वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ रफ्तार में था। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि मैं उसी स्पॉट पे मौजूद हूं जहां पर हिट एंड रन का मामला निकलकर सामने आया है। जो सबसे पहली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं तो ये वो जगह है जहां पर हिट एंड रन का मामला निकलकर सामने आया है। ये देखिए तस्वीरों में, सबसे पहली टक्कर यहाँ पर मारी गई है और यहाँ पर ग्लासेस जो है पड़े हुए हैं। बाइक यहीं पर खड़ी थी। दूसरी तस्वीर हम आपको यहाँ पर दिखाएं। देखिए, ये ऑटो है, ऑटो में टक्कर मारी। जो 6 साल के मासूम दीक्षांत की मौत हुई है, वो ऑटो में सवार था। ब्लड वगैरह यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर रखा अभी भी है इस ऑटो में। ऑटो यहाँ पर मौजूद था। अब मैं आपको एक दूसरी तस्वीर यहाँ पर और दिखाऊं तो जो बस जो अनियंत्रित कार थी, जो इसको गौरव ड्राइव कर रहा था, वो एयरपोर्ट की तरफ यानी इधर से आ रहा था, अनियंत्रित था। और जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, कुछ आई विटनेस भी हमारे साथ हैं, कल रात को यहाँ पर ये लोग थे। क्या हुआ था, पूरा मामला बताइए। मामला ये हुआ था, गाड़ी काफ़ी ज़्यादा स्पीड में थी और कई लोगों को घायल कर गई। आप यहाँ क्या कर रहे थे उस दौरान? मेरी दुकान है, वहाँ आगे लगती है। यहाँ तो बाइक खड़ी थी ना? यहाँ पे बाइक नहीं, काफ़ी सारा शाम को इतना माहौल, मतलब काफ़ी लोग ज़्यादा भीड़ होती ना शाम को, चौराहा है, इस वजह से कोई सामान लेने जाता है। तो जो लोग रोड पार कर रहे थे वो लोग घायल हो गए, और जो यहाँ पे खड़े थे और सामान ले रहे थे वो लोग भी घायल हो गए। 2 ऑटो खड़े थे, ये तो एक ऑटो सर खड़ा हुआ है, एक और ऑटो था। 2 ऑटो खराब हुए, यहाँ पे लड़ गए, पलट गए थे दोनों पलट गए थे। आधे दर्जन, 6 लोग घायल, 7 लोग। 7 लोग। एक की तो मौत हो गई उसमें। हाँ, एक बच्चा था, उसकी मौत हो गई, जिसको मैंने स्वयं वहाँ बीच रोड से। जब आवाज कितनी तेज आई, उसके बाद क्या किया? भाग गया था? टक्कर मारने के बाद भाग गया था? आवाज काफी तेज थी, वो रुका नहीं। 100 के ऊपर गाड़ी थी वो। 100 के ऊपर थी। आपने आप तो यहीं थे ना? जी। अपने आंखों से सब पूरा हादसा देखा? जी सर। क्या क्या देखा आप जरा बताइए। सर, गाड़ी वहाँ मतलब कहीं पहले पंचर हुआ पिछला पहिया, और फिर इतनी तेज स्पीड गाड़ी की बढ़ा दिया वो कि 100 के ऊपर। वहाँ पे एक बच्चा रोड पार करने के लिए खड़ा था अपनी माताजी और नानी के साथ।
उनको बच्चे को भी मार दिया टक्कर और उसकी माता जी भी वो हो गई डैमेज। तो देखिए हाँ, ये स्पॉट पे हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ पर तस्वीर में ऑटो चालक जो ये ऑटो ड्राइवर थे उनकी वाइफ हैं यहाँ पर हमारे साथ, इनसे बातचीत करते हैं। जरा आप इधर आइए। आपके पति इस ऑटो को चला रहे थे? हाँ, आप हमारे आदमी चला रहे थे। क्या हुआ, क्या बताया उन्होंने आपको? हमका बताएं कि मतलब ये का खड़ा करके वहीं बैठे रहे और कुछ यादें नहीं उनका। अस्पताल में ठीक है अभी? हाँ ठीक है। ठीक है। हाँ सिटी स्कैन करावे ले गए हैं लखनऊ। तो देखिए जिस तरीके से ये हिट एंड रन का मामला निकलकर सामने आया है, जाहिर तौर पे सीसीटीवी विजुअल्स को देखकर ये समझ में आता है कितनी भयानक ये हादसा था। बताया ये जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा रफ्तार में कार थी। फिलहाल डिटेन किया गया, हिरासत में है गौरव 21 साल का, जो लोकल पुलिस स्टेशन में मौजूद है, उससे पूछताछ हो रही है। जी जी ड्राइवर के बारे में क्या जानकारी दे सकते हैं अमित? बिकॉज फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम ही इज बीन absconding, देयर आर आल्सो रिपोर्ट्स दैट सजेस्ट दैट ही इज बीन डिटेन्ड। इस पे हमारे पास कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन है? जी हाँ बिल्कुल। देखिए 21 साल का है गौरव, जिसको पुलिस ने हिरासत में लिया है। हिट एंड रन के बाद वो गौरव जो है अपनी कार को लेकर फरार हो गया था। सबसे पहले जैसे ही यहाँ पर पहला टक्कर मारा है, पहला टक्कर यहाँ पर जैसे ही गौरव ने अपनी कार से मारा है, उसके बाद बताया यही जा रहा है जो आई विटनेस है, गौरव थोड़ी दूरी पर जाकर रुका, पीछे उसने देखने की कोशिश की कि क्या हुआ, पीछे कितने लोग चोटिल हुए, लेकिन उसके बाद गौरव वहाँ पर रुकने के बाद वहाँ पर से वो फरार हो गया। इस सड़क पर अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा सीसीटीवी हैं। सीसीटीवी के जरिए जो है उसका गाड़ी का नंबर लिया गया और गौरव का डिटेल लिया गया, गाड़ी गौरव चला रहा था कि नहीं, तमाम सीसीटीवीज़ को देखा गया और फिर गौरव को आखिरकार डिटेन कर ली गई है। स्टूडेंट बताया जा रहा है गौरव किस हालात में था, उसका मेडिकल भी कराया जाएगा। तो फिलहाल पूछताछ हो रही है, जाहिर तौर पर मेडिकल भी उसका गौरव का कराया जाएगा और उसके बाद फिर उसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके का इंसिडेंट निकल कर सामने आया, पहले हमने देखा कानपुर लग्जरी कार का मामला, उसके बाद ठीक 5 दिन बाद ठीक उसके चौथे दिन रात में एक बार फिर यहाँ पर हम लखनऊ में देखते हैं कि किस तरीके से हिट एंड रन का मामला निकल कर सामने और आया है। अमित जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं from the CCTV footages that we're flashing on our screens, viewers, you can clearly see this biker parked his two-wheeler on the side of the road and an over-speeding vehicle rams into it. The impact of the collision is for all of us to see here. Thank you, Amit, for joining us with those details. The driver of the car has been detained is the latest bit of news that's just come in. We need to head into a very quick break. Akanksha Swaroop joins you next in just a bit. Keep watching.